Amruta, you can start the introduction of the speaker and then we'll go ahead for the process. Thank you. Okay, sir. Good evening, everyone. It's a great pleasure for me to introduce our guest speaker for today's session, Mr. Deepak Sharma, sir. He has done Masters in Physics and Computers. He is a devotee of Shirdi Sai Baba and believes in life is a sacred journey from head to heart and heart to head. His banner is Sai Touch Consultants and Investments and Sai Touch Pharma. Training is his hobby and passion, and have trained and transformed many human beings from 5 years to 75 years age groups, including counseling, computers, and soft skill trainings since more than 30 years. He is counselor, life coach, and certified trainer from JCI International. He is also associated with many NGOs, training institute, and organizations. He was an outstanding participant in ZTWS at Mathura. He was also a president of JCI Baroda chapter in the year 2012. The topic for today's session is Khulso to Khilso, which is really very interesting topic to mold personality. Just like when bud opens up into a flower, it looks so beautiful. In the same way, if a person opens up, it expresses himself, it flourishes his one's personality. So I welcome you, sir, on behalf of ISTD Anand family, and I am sure everyone will enjoy today's session. Now I hand over the platform to Deepak sir for starting the session. Thank you. Thank you, Amruta, for this wonderful and very enthusiastic introduction. I acknowledge you. It was awesome. God bless you. Thank you, sir. And I acknowledge you all for being here. आप सब लोग जो यहाँ पे सेशन के लिए प्रेजेंट हो, I acknowledge you and I see to it that it is one of the best 1 hour of life. And believe me, the more you open up yourself, जैसे ये टॉपिक का नाम रखा गया है, खुल शो तो खिल शो, हमें खुलना है और खिलना है और उसी तरह जिंदगी को आगे लेके जाना है. यस, माय सेशन विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ जिसको हम बोलते हैं खिचड़ी, ऑल लैंग्वेजेस. इट विल बी इंग्लिश, इट विल बी हिंदी एंड गुजराती एज वेल. और टॉपिक मैंने खुल शो तो खिल शो गुजराती में ही बोला है. फ्रेंड्स, when I start, I will share a wonderful story with you and you have to listen it very carefully. और एक चीज मैं आपसे और कहूंगा कि जब भी हम किसी को सुनते हैं, मैं किसी को सुनता हूं, तो मुझे किसी को नहीं सुनना है, मुझे अपने आप को सुनना है. और जब मैं अपने आप को सुनता हूं, तब मैं सभी को सुन पाता हूं. And that is what is base of Khul Sho to Khil Sho. So when I will share this, whatever I am sharing, first I am listening myself और फिर मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ. उसी तरह आप भी जब मेरी कोई बात सुनोगे, मेरे कोई भी वर्ड सुनोगे, कोई भी स्टोरी सुनोगे, कोई भी एग्जाम्पल सुनोगे, आप उसमें देखना कि आप उसमें से क्या ले पा रहे हो, नहीं कि कोई और. जो हम अक्सर हमारे दिमाग में आता है, जब भी मैं कुछ बोलता हूँ मेरे दिमाग में पहले कोई आ जाता है, तो मैं कभी भी खुल नहीं पाऊंगा. आप तभी खुलोगे जब अपने अंदर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर सकोगे, जिसको हम बोलते हैं सोल सर्चिंग. Unless and until I search my soul, I can never खुलीफाई or I can never खिलीफाई on the humorous side. ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक स्टोरी शेयर कर रहा हूँ. एक साधु था और उसके एक शिष्य थे. साधु और शिष्य चलते चलते एक जंगल में से जा रहे थे. कुछ दूर जाके एक नदी आई. अब उस नदी पार करते टाइम जैसे ही साधु अपना पांव अंदर रख रहे थे, तो अचानक से एक बहुत प्यारी सी आवाज आई, गुरुजी मेरी मदद कीजिए. उन साधु महाराज ने एकदम से मुड़ के देखा तो एक बहुत ही प्यारी
ब्यूटीफुल लेडी, एक कन्या वहां पे बैठी हुई थी जो ऐसे डर के और सिमटी हुई बैठी हुई थी। तो उसने बोला क्या हुआ वत्स? बोले मैं ये नदी नहीं पार कर पा रही हूं, मुझे आप मदद कीजिए। तो साधु ने कहा ठीक है। साधु ने उस कन्या को उठाया, अपने शीशे के साथ चले और नदी के पार उस कन्या को छोड़ दिया। अब काफी देर तक चलते जा रहे थे। चलते चलते उस शीशे के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी, उससे रहा नहीं गया और उसने खुलते हुए अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी। बोले क्या हुआ वत्स? बोले हमारे धर्म में कन्या को हाथ लगाना, बोले अधर्म है। बोले फिर आपने उस कन्या को हाथ क्यों लगाया? आपने उस कन्या को मदद क्यों की? उसे उठा के एक जगह से, एक किनारे से दूसरे किनारे क्यों छोड़ा? तो ये सुनने वाली बात है, इसको ध्यान से सुनना। गुरुजी ने कहा, बालक, मैंने तो उस कन्या को एक जगह से उठाया और दूसरी जगह छोड़ दिया, लेकिन तू उसे क्यों अभी तक उठाए घूम रहा है? सो फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में भी यही होता है। जब भी कोई भी बात होती है, हम उसको दिमाग में ऐसा बिठा लेते हैं, इस तरह से अपने दिमाग में, मन में बिठा लेते हैं कि हम उसमें खुल ही नहीं पाते हैं, और ये जिंदगी भर असर होता रहता है। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि जो भी चीजें दिमाग में है उसको पहले साइड में रख दो और इस सेशन में पूरा मजा लो और इतने खुल जाओ कि आप खिल जाओ। और ये खुलशो तो खिलशो की पोएट्री भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो अक्सर हो सकता है आपने कहीं सुनी भी हो, एंड दिस इज बीइंग क्रिएटेड बाय मी। खुलशो तो खिलशो, खुलशो तो खिलशो, खिलशो तो पामशो, पामशो तोच आपशो, पामशो जब कुछ मिलेगा तोच आपशो, आपशो तो बधाना हृदय અને દિમાગમાં જામશો, આપશો તો બધાના દિલ અને દિમાગમાં જામશો, જામશો તો જિંદગીમાં ક્યારે નહીં થામશો, ક્યારે નહીં થામશો, ક્યારે નહીં થામશો. So this is the main theme of life कि हम खुलेंगे तो ही खिलेंगे. And this session will be interactive session. तो यहाँ पे आप जब कुछ शेयर करोगे, कुछ बोलोगे, और मैंने अभी ये स्टोरी शेयर की, इसमें आप लोगों को क्या कुछ क्या सुनाई दिया वो आप यहाँ शेयर कर सकते हो, और बोल भी सकते हो, लिख भी सकते हो. आई विल गिव यू 2 minutes. राजू भाई, दलवाड़ी भाई. हाँ सर. मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. किसी ने कुछ बोला तो. किसी ने कुछ बोला. अमृता, you want to say something? I personally think that whenever we think about any particular situation, we always try to think from our perspective, our point of view. Then we never try to think what will be the perspective of others, right? That is very important. Very powerful, very powerful. राजू भाई, मेरा कहने का मतलब यही है कि we don't go to the other person's world. Unless and until you go into other person's world, जो बोलते हैं ना कि दूसरों के पाँव में, दूसरों के शूज में अपना पाँव डाल के देखो, where the shoe pinches. जब तक हम किसी और पर्सन के वर्ल्ड में नहीं जाते हैं, हम लोग अपने आप से बाहर नहीं आते हैं, और जब तक हम अपने आप से बाहर नहीं आते हैं, हम लोग खुल नहीं पाते हैं. ग्रेट, ग्रेट. यहाँ पे एक मैं शायरी और शेयर भी कर दूंगा. Normally I am fond of शायरीज and I will share this शायरी. सभी का यारो नहीं होता है नसीबा रोशन सितारों जैसा, सभी का यारो नहीं होता है नसीबा रोशन सितारों जैसा, सयाना वो है जो पतझड़ में भी सजा ले गुलिस्ता बहारों जैसा, सयाना वो है जो पतझड़ में भी सजा ले गुलिस्ता बहारों जैसा. यस फ्रेंड, अभी जो राजू भाई ने भी शेयर किया कि हम जब तक दूसरों को नहीं समझते हैं, दूसरों के वर्ल्ड में नहीं जाते हैं, तब तक हम कहीं पे भी एक गुलिस्ता
नहीं बना सकते, नहीं सजा सकते, and we have got that power. Everybody has got that power, but then you have to express. You have to self-express. Self-expression is the only key. It is a base for everything. यहाँ पे मैं एक छोटा सा और एक PDF शेयर करूंगा, एक स्टोरी। तो दिव्यांग भाई, मैं ये हाँ सर, शेयर थશે प्लीज प्लीज। ओपन करूं ना? हाँ सर, हाँ सर। यस सर, you have to click on share screen at the bottom. Green tab जो क्लिक करशो ना स्क्रीन पर तुम्हारी। शेयर स्क्रीन ना? हाँ सर। ओके ओके, गॉट दैट। देखाय છે ને? हाँ, આવે છે સર, દેખાય। Yes, yes, now it is open. Great. So you can read with me. I will read. This is a wonderful sharing. A group of scientists placed 5 monkeys in a cage and in the middle a ladder with bananas on the top. દેખાય છે બધાને? ઠીક है, बनाना છે અહીં અને monkeys. हाँ सर, visible જ છે। Go ahead sir, please. You might be aware of this story also, but we look from different perspective. Every time a monkey went up the ladder, the scientists soaked the rest of the monkeys with cold water. जब जब कोई मंकी सीढ़ी से ऊपर चढ़ के जाता था, तो साइंटिस्ट क्या करते थे, बाकी के मंकी पे ना बहुत ठंडा पानी डाल देते थे। एज्यूम करो ये ठंडी है जैसी अभी, और उसमें आपके ऊपर कोई अगर पानी डाल दे, तो उस तरह का पानी मंकी पे डाला जाता था। After a while, every time a monkey went up the ladder, the others beat up the one on the ladder. तो जो लैडर पे मंकी चढ़ के ऊपर पहुंचने जाता था, बाकी सब मंकी जैसे ही वो साइंटिस्ट पानी डालते थे, उसको पकड़ के नीचे खींच लाते थे। After some time, no monkey dared to go up the ladder regardless of the temptation. Scientists then decided to substitute one of the monkeys. The first thing this new monkey did was to go up to the ladder. Immediately, the other monkeys beat him up. After several beatings, the new member learned not to climb the ladder, even though never knew why. This is something very important. ये मेरे सेशन से डायरेक्टली रिलेटेड है। After several beatings, the new member learned not to climb the ladder, even though never knew why. And this is related to life, and I am talking of life. A second monkey was substituted, and the same occurred. The first monkey participated on the beating for the second monkey. A third monkey was changed, and the same was repeated. This beating was repeated every time. The fourth was substituted, and the beating was repeated. And finally, the fifth monkey was replaced. क्या हुआ होगा? Can you imagine? What was left was a group of 5 monkeys that, even though never received a cold shower, continued to beat up any monkey who attempted to climb the ladder. इसको हम crab mentality भी बोलते हैं. If it was possible to ask the monkeys why they would beat up all those who attempted to go up the ladder, I bet you the answer would be, I don't know. That's how things are done around here. I don't know. That's how things are done around here. Does it sound familiar? So don't miss the opportunity to share this with others, as they might be asking themselves why we continue to do what we are doing if there is a different way out there. Friends, Shiv Khera always said, winners don't do different things, they do things differently. Don't miss the opportunity to share this with others, as they might be asking themselves why we continue to do what we are doing if there is a different way out there. Only 2 things are infinite: the universe and human stupidity. And I am not sure about the former, said Albert Einstein. So what are you getting from this story? Please, full show to kill show. Abdu session છે. ટ્રેડિશનલી બધા અટકાઈ જતા હોય ને આપણે ચાલે આવે છે ને એવું જ કરવા કરતા
કંઈક અલગ કરીએ અથવા તો પ્રશ્ન પૂછવાનું રાખીએ કેમ ના કરવું. हाँ, एक मिनट, ये स्क्रीन, मेरी स्क्रीन बड़ी कर दूंगा. સર નીચે સ્ટોપ સ્ક્રીન શેરિંગ હશે એ કરશો તો જીતતું રહેશે, વાંધો નહીં. તમને ફાવશે તમે કરી દો. ગ્રીન ટેપ પર ક્લિક કરશો ને નીચે ઓપ્શન આવશે તો. नहीं तो okay. અધરવાઇઝ ઇટ ઇઝ ફાઇન. તમારે તમારી સ્ક્રીન મોટી જોવી અરે હોય તો zoom તમે છે એ ઉપર પિન કરશો. એ ઉપર જતું રહ્યું હતું. હમ. Just a second. हाँ, आई गई. સર મેં બંધ કરી દીધું છે, મેં કરી દીધું. Okay, okay, got that. So what are you getting from this? नीचे मैं देख लूं किसी का चैट है. નહીં સર, નહીં નથી નથી. So what do you want to share from this? દિવ્યાંગભાઈ તમે રિપીટ કરો, તમે બોલ્યા. હા સર, हाँ, please. I was saying કે જે બધા અટકાવતા હોય તો you should ask a questions કે કેમ ના કરવું જોઈએ, અને if you wanted to do something right you should try to do it. ને પેલા stereotyped environment માં રહીને આ તો આવું જ ચાલે છે વર્ષોથી, આપણે કંઈક અલગ કરો, તમારા માટે કરો. Exactly. હવે આને આપણે લાઈફમાં જોઈએ તો આપણી લાઈફમાં શું ચાલી રહ્યું છે? When we get stopped, સરકાર કરે ત્યારે. हाँ, અને આપણે why we get stopped? somebody force us to stop us, એવું થાય. environment એવું થતું હોય અથવા તો સિચ્યુએશન એવી થતી હોય and we stuck up into the. Yes, so basically and he say anywhere in life we say okay, who is stopping you? It is always I. But જે રીતે આઇન્સ્ટાઈને કીધું કે અથવા સ્ટોરીમાં આપણે જોઈએ કે when you keep on doing routine things you are bound to stop. When you don't do anything different, when you don't do anything new, a person is bound to stop. Why a person succumb to circumstances or situation? एक आदमी situations के हिसाब से क्यों रुक जाता है? सर जब किसी की विल पावर नहीं हो, मीन्स किसी को लैक ऑफ, व्हेन देयर इज लैक ऑफ विल पावर, दैट्स व्हाई वो रुक जाता है कि कर सकते हैं कि नहीं, लाइक. हाँ, तो विल पावर क्यों रुक जाती है? अमृता, वेरी गुड, तुमने अच्छा इंटरेक्शन किया तो मेरे को यहाँ पे स्कोप मिला. बिकॉज मॉरल सपोर्ट नहीं होता लोगों का, मीन्स कि कोई धक्के मार के बोलता है कि करो, तुम कर सकते हो, तो उससे विल पावर नहीं होती उतना. अंदर से इच्छा शक्ति होगी तो यस. तो इधर जैसे हम मंकीज में देख रहे थे कि मंकी एक मंकी दूसरों को खींच रहा था, और एक टाइम पे जब उन पे ठंडा पानी नहीं डाला गया तो भी बाद में उन्होंने वही किया जो पहले नहीं किया, दूसरे ने किया, और वो चलता रहा. तो अब क्या होता है कि हम लोग अपने अंदर नहीं, ये खुलशो तो खिलशो क्या एग्जैक्टली कि मैं मेरे अंदर नहीं देख रहा हूं, मैं अमृता को देख रहा हूं. अब अमृता की कैपेबिलिटी, अमृता की एबिलिटी उसके हिसाब से है, अमृता की जो भी लाइफ है उसके हिसाब से है, वो उसको क्या मिला क्या नहीं मिला. लेकिन मैं अमृता से अपने आप को कंपेयर क्यों करूं? तो कौन सा वर्ल्ड आता है जब हम रुक जाते हैं? हम क्यों खुलना बंद हो जाते हैं? कौन सा वर्ल्ड आता है? वर्ल्ड ऑफ नॉलेज का सोर्स क्या है? मैंने कैसे कंपेयर किया कि अमृता की नॉलेज मेरे से ज्यादा है? कंपैरिजन से. यस, थॉट्स आती है, और थॉट्स आती है तो क्या होता है?
information. बहुत अच्छा तुम इंटरेक्ट कर रहे हो अमृता, आई एक्नॉलेज यू. વિચારોમાં ખોવાઈ So જાય ને true. એટલે બીજાને કમ્પેરિઝન થી વિચારોમાં ખોવાઈ જાય. હા, વિચારોમાં ખોવાઈ ગયા આપણે જ્યારે થોટ્સ આવે. મને કહો થોટ્સમાં શું આવે દિવ્યાંગભાઈ, અમૃતા? થોટ્સ ક્યાંથી આવે? વિચારો થાય ને આપણે અંડર એસ્ટિમેટ કરવાનું ચાલુ કરીએ કે બીજાએ સારું કર્યું કાં તો વી સ્ટાર્ટ કમ્પેરિંગ, રાઈટ? વેધર કમ્પેરિંગ વિથ અવરસેલ્ફ, વી સ્ટાર્ટ કમ્પેરિંગ વિથ અધર્સ. અને કમ્પેરિઝન ક્યાંથી આવે? બીજાને જોવાથી. આપણે આપણને નથી જોતા, બીજાને જોઈએ છે. હા, અને સ્ટાર્ટિંગ ક્યારે જોયું હોય? એ ક્યારે જોયું હોય? હમણાં જોયું હોય કે પહેલા જોયું હોય? એક યાદનું બી હોય છે, પેલાનું બી હોય છે. હા, એટલે હમણાંનું નથી ને. So we get stopped. Yes, We sir. get stopped when we think things from the past. Yes, sir. दिव्यांग ने मेरे से क्वेश्चन किया, अमृता ने मेरे से क्वेश्चन किया आज, और मैंने बोला दिव्यांग क्या ऐसा कोई क्वेश्चन करता है क्या? तुम यार इतने केपेबल होके लर्नेड होके ऐसा क्वेश्चन करते हो. तो दिव्यांग ने दिमाग में डाल दिया कि मेरे को आज के बाद कोई भी सेशन में क्वेश्चन नहीं करने का. यस और नो? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, रिस्पॉन्स तो है. मेरे को लगा स्क्रीन अटक गई क्या. नहीं सर, प्लीज गो अहेड. तो ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? किसी ने तुमको चुप करा दिया और तुमने बोला आज के बाद मेरे को आगे पूछना ही नहीं है. ये कहाँ से आया? दिमाग से. दिमाग. तो दिमाग कहाँ गया? Past experience. यस, पास्ट एक्सपीरियंस. वंडरफुल, वेरी गुड. और इसी तरह हम कैसे रुक जाते हैं? एक पास्ट से रुक जाते हैं और दूसरा कहाँ से रुक जाते हैं? पास्ट एक्सपीरियंस से हमने एक रूल बना दिया लर्निंग कैसा ही होता है, तो बाद में वी विल नेवर बियॉन्ड क्रॉस दैट प्रिंसिपल्स वी लर्न फ्रॉम दैट लर्निंग, मतलब एक्सपीरियंस. यस. एट द सेम टाइम मैंने सोचा कि मुझे आगे अब कुछ करना है, तो मैं या पास्ट से रुकता हूं या तो मैं फ्यूचर से रुक जाता हूं. लेकिन खुलशो तो खिलशो है ना, वो है ही कि तुम प्रेजेंट में जितना जियोगे, प्रेजेंट में जितना रहोगे, उतना आगे जाके हर चीज तुम्हें मिलेगी. When whatever actions you take now, and if those actions are not coming from the past, and if those actions are not making you afraid of future, you enjoy the present. And when you enjoy the present, you are always प्रफुल्लित. हमेशा खुश रहोगे, हमेशा हंसते रहोगे, हमेशा प्रेजेंट रहोगे. और जब प्रेजेंट रहोगे तो कोई भी बोलेगा तो उसको सुनोगे, और जब सुनोगे तो आप उसका रिस्पॉन्स अच्छा करोगे, और जब रिस्पॉन्स अच्छा करोगे तो आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज गिव्स पावर. रिमेंबर, responsibility always gives power, and reactions always makes you disempowered. Reactions always makes you disempowered. जब हम रिस्पॉन्स करते हैं हम पॉजिटिव हैं, जब हम रिएक्ट करते हैं हम नेगेटिव हैं. राजू भाई की एक शायरी मेरे को याद आ गई. हम वहां पे भी कभी कभी अटक जाते हैं, क्योंकि मतलब आदमी ऐसे जीता है. कैसे? राजू, आप शायरी आप भी बोल सकते हो. मैं कौन सी शायरी की बात कर रहा हूँ? आज तो पूरा मूड आपको सुनने में ही है. अच्छा, ठीक है. ये शायरी ऐसी है कि मतलब बोलते हैं ना कि इंसान साथ में बैठे हैं और दूर कहीं बहुत एक चीज भी उनके दूर बैठ के उनको देख रही है, तो इस माहौल में ये शायरी ऐसी बनती है. आज जो परिस्थिति भी, आज जो एक सिचुएशन भी है, क्योंकि हम लोग ओपन अप नहीं हो पाते, क्यों हम लोग खुल नहीं पाते, क्यों मैं डिमोरलाइज हो जाता हूँ, क्यों मैं डिसएम्पावर हो जाता हूँ, क्यों मैं इनसिक्योर्ड हूँ, क्यों मुझे फियर है. तो ये शायरी उसमें भी एक रोल प्ले करती है कि इंसान को डस रहा है, इंसान को डस रहा है, दूर बैठा
एक जहरीला सांप देख के हंस रहा है। दूर बैठा एक जहरीला सांप देख के हंस रहा है। तो आज परिस्थिति ऐसी है कि वी डोंट हैव फियर ऑफ people who are poisonous or entities or things which are poisonous. We have fear of people around us, human beings around us. Why? Because कहीं ना कहीं उनकी सोच हम पे असर होता है, सिचुएशंस का हम पे असर होता है, और वो लोग जब बोलते हैं तो वो चीज हमारे दिल और दिमाग में ऐसा असर कर जाती है। अगर अमृता ने इधर मेरे इंट्रोडक्शन में बोला लाइफ इज अ सीक्रेट जर्नी फ्रॉम हेड टू हार्ट एंड हार्ट टू हेड, दैट इज समथिंग जॉय, फन, लव, एफिनिटी, कंपैशन। क्योंकि दिमाग और दिल का जो संतुलन है ना, वो जब बिगड़ता है ना, तभी सब कुछ बिगड़ता है। आदमी इसलिए नहीं खुल पाता है, आदमी इसलिए सेल्फ एक्सप्रेसिव नहीं हो पाता है, क्योंकि दिमाग में कुछ चल रहा है, दिल में कुछ है और एक्शंस कुछ है। तो मेरे एक्शंस, मेरे वर्ड्स, मेरी सोच सब कंसिस्टेंसी में नहीं है। और आज का वर्ल्ड बहुत चैलेंजिंग वर्ल्ड है। आज का वर्ल्ड है वर्चुअल वर्ल्ड, आज का वर्ल्ड है व्हाट्सएप का वर्ल्ड, आज का वर्ल्ड है मोबाइल का वर्ल्ड। अब इस वर्चुअल सेशन को भी इंटरेस्टिंग अगर बनाना है तो मुझे मेरे थॉट प्रोसेस में डालना है कि मैं सेशन ऐसे ले रहा हूं जैसे सब लोग सामने हैं। द मोमेंट आई विल गो इनटू दैट काइंड ऑफ वर्ल्ड, ओके तो इस पे सेशन लेना है, तो मैं ब्लैंक हो जाऊंगा। सो एवरी टाइम आई एम मेकिंग माई सेल्फ प्रेजेंट। ओके, मेरे दिमाग में कहीं नहीं मैं ला रहा हूं कि मैं सेशन ये जूम पे ले रहा हूं, और बार बार याद करा कि मैं ऑल सेल्फ एक्सप्रेसिव हो रहा हूं, मैं खुल रहा हूं। और ये खुलशो तो खिलशो का हिंदी वर्जन भी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत प्यारा है और मुझे बोल के बहुत मजा आता है, और यही लाइफ का निचोड़ है। आप रोज ये अगर बोलोगे, वीडियो भी रिकॉर्डिंग हो रहा होगा या आप लिख भी लोगे तो भी हर्ज नहीं है, लेकिन ये रोज बोलो, एंड दिस इज जिंक्स ऑफ लाइफ। खुलोगे तो खिलोगे, खुलोगे तो खिलोगे, खिलोगे तो पाओगे, खुलोगे तो खिलोगे, खिलोगे तो पाओगे, पाओगे तभी तो सभी को अपनाओगे, पाओगे तभी तो सभी को अपनाओगे, और जब सभी को अपनाओगे सबके दिलों में छा जाओगे, और दिलों में छा जाओगे तो जिंदगी में कभी भी ना रुक पाओगे, कभी भी ना थम पाओगे, कभी भी ना रुक पाओगे, कभी भी ना थम पाओगे। एंड दिस इज व्हाट इज रियल थिंग्स ऑफ लाइफ, and this is possible only when you are living in present। और प्रेजेंट आदमी, थैंक यू, और प्रेजेंट आदमी खुश रहता है, और खुश रहने वाला आदमी। फ्रेंड्स, मेरे को एक चीज बताओ, मेरे पास खुशी होगी तो मैं किसी को क्या दूंगा? खुशी। मेरे पास जेलसी होगी तो मैं किसी को क्या दूंगा? जेलसी। ध्यान से सुनना है, इसको लिसन करना, और अपने आप को ही हमें सुनना है। मेरे पास खुशी होगी तो खुशी दूंगा, मेरे पास जेलसी होगी तो मैं जेलसी दूंगा, मेरे पास दुख होगा तो मैं दुख दूंगा, और मेरे पास पैसा होगा तो मैं किसी को नहीं दूंगा। ठीक है ना? तो नॉर्मली जो मेरे पास होगा वो मैं किसी को दूंगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब है जब आप हमेशा खुश रहोगे और खुल के रहोगे, खिलते रहोगे। मेरे को राजू भाई का स्टाइल भी बहुत अच्छा लगता है, मैं आज भी याद कर रहा हूँ, इतने सालों के बाद मैं इनको मतलब देख रहा हूँ, शायद 7-8 साल के बाद हम लोग इंटरेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है ना? तो ये हमेशा ना बहुत ऐसा प्रफुल्लित ही रहते हैं। तो मेरे को शुरू में लगता था यार ये आदमी इतना खुश कैसे रहता है, क्योंकि आदमी बहुत खुश रहता है ना, हमको लगता है नाटक करता है ना, एक ड्रामा करता है ये तो। अरे ऐसा नहीं होता है। एंड व्हेन यू फेक इट यू मेक इट। इनिशियली सब लोग फेक ही करते होते हैं, लेकिन आज मेरे को देख के अच्छा लगे, आज ये राजू भाई को देख के मैं और खुल के बात कर रहा हूँ। Why? Because he is always enthusiastic, he is always smiling and प्रफुल्लित। ग्रेट। और डॉक्टरों की खुश रहना बहुत अच्छी बात है। राजू भाई आपके लिए एक और शायरी। जल्दबाजी में तो अब बस सांस ही ली जाती है, जल्दबाजी में तो अब सांस ही ली जाती है,
जिंदगी कहाँ फुर्सत से जी जाती है। और ये हमारी लाइफ, थैंक यू, और ये हमारी लाइफ हो गई, हो नहीं गई है, मैंने कर दी फ्रेंड्स। इसलिए आज का टॉपिक, थैंक यू, इसलिए आज का टॉपिक यही है। एंड वन मोर थिंग, यस मिस्टर राजेश धावी, कुछ बोलना चाहते हैं आप? No, sir, please continue. गॉट दैट। सो मैं बात कर रहा था कि मतलब हम लोग इतना, मैं इतना ऑक्यूपाइड हो गया हूँ कि मेरे पास आज, बोलते हैं ना कि लाइफ में कुछ बॉल्स होती हैं। एक फैमिली लाइफ होती है, वो एक बॉल है। रिलेशनशिप की लाइफ होती है, फिर वर्क लाइफ होती है, और एक मेरी हॉबीज और पैशन की लाइफ होती है। ये सब 4-5 बॉल है, लेकिन जो रिलेशनशिप का बॉल है ना, और जो फैमिली के साथ हम जो टाइम निकालते हैं, वो एक बॉल है, फैमिली लाइफ का बॉल है, ठीक है ना। ये सब बॉल एक बार गिर जाते हैं ना, तो वापस क्या आते हैं, टूट जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं, फिर आप कितनी भी कोशिश करो। एक खाली वर्क स्पेस का बॉल होता है कि जो एक बार गिरता है तो रबर का होता है, बाउंस बैक करता है, एक नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा। बट आज क्या हो गया है कि हर एक इंसान इस भागदौड़ में इतना आगे बढ़ गया है कि he is not present to live life. What life he is living, what life she is living. Just get that. आज हम लोग खुश नसीब है कि ऐसे बात कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग अपने आप के लिए टाइम निकाल रहे हैं, और खुद के लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है आज के जमाने में। एट द सेम टाइम, दिस पेंडेमिक और दिस कोरोना लॉकडाउन has made us realize कि लाइफ इज अ सीक्रेट जर्नी। मैं फिर से रिपीट करूंगा, फ्रॉम हेड टू हार्ट एंड हार्ट टू हेड। अगर मैं मेरी फैमिली के साथ बॉन्डिंग नहीं क्रिएट कर सकता हूँ, मैं मेरे कुछ अजीज या करीब लोगों के साथ बॉन्डिंग क्रिएट नहीं कर सकता हूँ, जब मैं दिल खोल के बात कर सकता हूँ, तो जिंदगी में सब कुछ मिलने के बाद भी सब कुछ खो दिया, यही एहसास रहेगा। तो इस पे आप क्या बोलना चाहते हैं कि मैं अपने आप में अगर जी नहीं पा रहा हूँ, अपने आप को नहीं देख पा रहा हूँ, तो मेरी लाइफ कैसी? और ये कोरोना ब्रेकडाउन में आपको क्या नई चीज मिली जिसमें आप खुले, और वो आपकी लाइफ में कहीं प्रेजेंट ही नहीं था? ऐसी बहुत सारी चीज होगी, मैं कोई भी 1 या 2 चीज बोलूंगा आपको शेयर करने को, प्लीज। और मेरे सेशन में आपको दिखाई दिया होगा, मंथन learned so many things. पार्डन, हमारा एक मंथन, हाँ, यस मंथन सर, लॉकडाउन में मुझे कोई नई चीज तो मतलब मैं पहले से कर रहा था, बट लॉकडाउन में मुझे मैं मिला। मैं अपने आप को मतलब, वो होता है ना कि इंसान खुद ही में कई बातें सोचता है और ऐसा बोलता है छी ये तो मतलब थोड़ा क्रिंज है, या फिर थोड़ा डिस्गस्टिंग है, या फिर ये बच्चों जैसे सोच है जो हर कोई सोचता है, गॉट दैट। लेकिन तो एक्सेप्ट नहीं कर पाता। यस, तो आपने वो चीज को कैसे पाया, मतलब कि, और मतलब जो हर एक इंसान अपने आप में एक वियर्ड होता है। यस, मतलब हर एक आदमी यूनिक होता है, उसके लिए अच्छा वर्ड अपन यूज करेंगे, हाँ, है ना। हर एक आदमी यूनिक है। आज मंथन यूनिक है, और मंथन तो नाम ही देखो मंथन है। और मंथन, तुमने इतना देर से मंथन क्यों स्टार्ट किया? मंथन इटसेल्फ इज सोल सर्चिंग, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, जो मैंने यहाँ पे अभी शुरू में शेयर किया। ग्रेट, वेरी गुड। एनीथिंग एल्स? દીપક ભાઈ, મેં છે ને એક ઘણા વર્ષો પહેલા એક આર્ટિકલ વાંચેલો ગુજરાતી, કારણ વગરનો દિવસ, हाँ, લગભગ 20 વર્ષ પહેલા વાંચ્યો છે। બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ આર્ટિકલ હતો કે કારણ વગરનો દિવસ કેવો હોય, તો એનું આખું વર્ણન કર્યું હતું કે સવારે નીકળવાનું ને આમ સ્કૂલે જતા બાળકોને જોવાના ને એમ, એટલે બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ એમાં હતું કે કારણ વગરનો દિવસ કેવો હોય એમ। એટલે લોકડાઉનમાં મને લાગે છે કે એટલા બધા દિવસ મેં કારણ વગરના કાઢ્યા એમ,
કે સવારથી પિક્ચર જોવા બેઠા હોય તો સાંજ સુધી પિક્ચર જ જોયા એમ, કે સવારથી બગીચામાં બેઠા હોય તો સાંજ સુધી બગીચામાં જ બેઠા એમ. એટલે ઓલા આર્ટિકલમાં વાંચ્યા પછી છે ને આમ યાદ આવતું હતું કે આ કારણ વગરનો દિવસ કેવી મજા આવે એમ, હે ને? તો એક બહુ સારો અનુભવ થયો લોકડાઉનમાં. ગ્રેટ. એ કારણ વગરનો નહીં, એ તો કારણનો દિવસ. એટલે તમારી જિંદગીનું કારણ શું છે? સુખ, સમૃદ્ધિ, શાંતિ. યસ યસ, ટ્રુ. અને that is you opened up like anything and you operated from nothing. તમે તો જબરદસ્ત ખુલી ગયા ને ખીલી ગયા. એટલે જ આ સેશન જનરેટ થયું. સર, you attracted this session. Great. Yes, Divyang, you want to share anything? यस सर. अच्छा, विनीत मोदी want to share? यस, लॉकडाउन में हमें नई नई चीजों एक्सप्लोर करने का जो टाइम नहीं मिलता था वो टाइम मिल गया. નવી નવી વસ્તુ આપણે વાંચવી હતી, વિચારવી હતી, બરાબર. એનો આમ સામાન્ય રૂટીન લાઈફમાં ટાઈમ નહોતો મળતો. એ નવી જે આપણે રસની વસ્તુ હોય, બરાબર, એ ટાઈમ મળી ગયો લોકડાઉનમાં. કારણ કે ક્યાં જવાનું નહોતું, ત્યાં મોબાઈલ લઈને ગૂગલ સર્ચ કરવાનું હતું, બરાબર, લેપટોપ લઈને. તો એ બધું જે આપણને શોખ હતો પણ આપણને ટાઈમ નહોતો મળતો, બરાબર, રૂટીન લાઈફમાં. તો એ ટાઈમ ઘણું મળી ગયો એ બધું વસ્તુઓ શોધવાનું, જાણવાનું. તો એક બે વસ્તુ શેર કરશો જેને તમને આમ ખોલી નાખ્યું ને પ્રફુલ્લિત કર્યું? મને વૈદિક હિસ્ટ્રી જાણવાનો બહુ શોખ હતો કે રામાયણ મહાભારત એક્ઝેક્ટ કેટલા દિવસ પહેલા થયા, 5000 વર્ષ પહેલા થયા, રામાયણ ક્યારે થયું, રામાયણ ટીવી પર આવતું હતું પણ એક્ઝેક્ટ આ ફિનોમિનન ક્યારે થઈ, શું થઈ, એનો લોજિકલ સાયન્ટિફિક પ્રૂફ સાથેના બધા વિડીયો અવેલેબલ છે. એક નિલેશ ઓક કરીને સાયન્ટિસ્ટ છે, એમણે બધું શોધેલું છે કે કઈ રીતે કેટલા વર્ષ પહેલા આ વૈદિક યુગ હતો. એ બધું એક્સપ્લોર કરવાનો ઘણો ટાઈમ મળ્યો. Great. So keep sharing and keep contributing. See, ખુલશોનો બીજો થીમ મારી પોએટ્રીમાં એ પણ છે કે unless and until you contribute, you will never get. Yes. देना ही लेना है. Yes. और उसके ऐसा मजा नहीं है. તમારું લગ્ન થઈ ગયું? હા સાહેબ, હું તો 53, મારે 2 દીકરીઓ લગ્ન કરવા છે. હા, તો હું તો સરસ. એટલે અને હું પેલું મસ્કરી કરું છું કે ઘણા બધા લોકો એવું પણ કહે છે કે મને તો વાઈફ મળી ગઈ લોકડાઉનમાં. હસબન્ડ ને વાઈફ મળી ગઈ ને વાઈફ ને હસબન્ડ મળી ગયો. પેલા મળતા જ નતા. On the humorous side. Great. So God bless you and your family. Very powerful. Okay. Thank you, sir. Yes, what else? दिव्यांग, अमृता तुम शेयर करो, बहुत टाइम हो गया. सर, लॉकडाउन में मैंने बहुत सारी चीजें सीखी. लाइक बहुत मतलब पहले ऐसा होता था कि फैमिली बॉन्डिंग नहीं होती थी. एक टाइम ऐसा था कि खाना साथ में नहीं हो पाता था बिकॉज माय पेरेंट्स आर डॉक्टर, सो उनको जाना पड़ता था, तो उतना कुछ हो. लेकिन लॉकडाउन में फैमिली इंटरेक्शन, फैमिली बॉन्डिंग अच्छे से बिल्डअप हुई एंड वी ओपनड अप एंड थॉट शेयरिंग हुआ. इवन आई कैन गिव वन एग्जांपल कि हमने एक ग्रुप बनाया है. Every Saturday we used to video call our family relatives on that video call, group call, so we can share things and even we can ask their health status and how are they now, like that. So Great. तो वो बचपना वापस आ गया. yes. पर अमृता तो ये क्या बोलेगी, जैसे मैंने बोला ना, हस्बैंड को वाइफ मिल गया, वाइफ को हस्बैंड मिल गया, माँ बाप को बच्चे मिल गए, तो अमृता को क्या मिल गया? पेरेंट्स मिल गए फिर से. Great. Yes, family. Yes, very good. And family का फुल फॉर्म मालूम है? FAMILY. वही मैं शेयर कर देता हूँ, आपने बात निकाला है तो एक अच्छा है उसका सीरीज. किसी को आइडिया है? F for यज्ञेश भाई, तुमने खबर है? F for क्या होगा? F for father, A for and, M for mother, I for I, L for love, Y for you. Father and mother, I love you. That stands for family. It's a great
Great formula, sir. Full form. Wonderful. got that. Thank you very much. Yes, જગ્નેશભાઈ તમે કશું કહેવા માંગો છો? વચ્ચે વચ્ચે આવતા હતા. ग्रेट फ्रेंड्स, मैं एक चीज और आपको बहुत अच्छी बताऊंगा कि नॉर्मली आदमी कब खुल पाता है. क्या होता है कि देखो लाइफ है ना, लाइफ इज अ रोलर कोस्टर राइड. वो मतलब बहुत आराम से स्मूथ तो चलने वाली है नहीं. और अभी कोरोना के दरमियान और कोरोना के बाद हमको बहुत कुछ एहसास हुआ है. लेकिन क्या होता है कि वी गेट प्रेजेंट, वी गेट अवेयर, बट देन एट द सेम टाइम वी हैव टू बैलेंस एंड मैनेज द थिंग्स, जो बहुत आसान नहीं होता है. तो लोग बोलते हैं ना मेडिटेशन करो, योगा करो. मैं बोलता हूँ वो तो करो ही. एट द सेम टाइम सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करो और लव करो. एक्सेप्ट योरसेल्फ, लव योरसेल्फ. अगर कोई पतला हो गया तो लव योरसेल्फ, कोई मोटा हो गया तो भी लव योरसेल्फ. एंड एट द सेम टाइम whenever you come across, this is my formula also, whenever I come across any new person, मेरे को एक चीज बताओ, कोई भी इंसान को आप जब पहली बार मिलते हो आप क्या करते हो? कोई भी इंसान को आप जब पहली बार मिलते हो आपके दिमाग में क्या थॉट्स आती है? प्लीज, कोई भी इंसान क्या करता है? એમના વિશે વિચારે કેવા હશે, શું કહેશે. हाँ, विचार એટલે क्यों विचारे? हाँ, બાર क्यों विचारे? નામ કરો મને, ફોન કરો. एक्सटर्नल अवाज આવતી હોય તો મ્યુટ કરી દેજો. તો કેવું વિચારે માણસ? માણસ બીજાને પોતાના હિસાબે વિચારે અને એના જે વીકનેસીસ હોય ને એના એ વીકનેસીસ ના હિસાબે વિચારે. સ્ટ્રેન્થ હોય સ્ટ્રેન્થ ના હિસાબે વિચારે, પણ પેલા માણસની સ્ટ્રેન્થ ને એક્સેપ્ટ ના કરી શકે. तो वी आर ऑलवेज इन डायर स्टेट्स कि सामने वाले को देख के हमेशा मैं क्या करूंगा? जज करूंगा, इवेल्युएट करूंगा, एनालाइज करूंगा और वैलिडेट तो नहीं करूंगा, इनवैलिडेट जरूर करूंगा. तो सबसे पहला मंत्र मतलब लाइफ में ये, अगर अपने लाइफ को बहुत अच्छा बनाना है, हमेशा प्रफुल्लित रहना है, खुश रहना है. और मैंने बोला ना जैसे सुखी हो गए तो सुख दोगे, तो मैं बोलता हूँ दुखी भी हो ना तो भी सुख दो सको. उसके लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि लव योरसेल्फ, accept yourself, and any person you meet or come across in your life, simply accept them internally. उसको accept कर लो और acceptance के बाद आप उसके साथ interact कर लो. And that is a wonderful connect. तो जो कनेक्शन है ना वो हमेशा देखा जाए तो हमारे अंदर ही है, जो दूसरों के साथ तुरंत कनेक्ट होते हैं. इट्स लाइक वाईफाई कनेक्टेड, कि वाईफाई से हम कैसे कनेक्ट होते हैं. तो जब मेरे दिमाग और दिल का संतुलन होगा तो मैं हमेशा सबसे कनेक्ट होगा. और उसके बाद हमें एक्नॉलेज करते आना चाहिए उनकी कोई भी चीज जो हमको एक्सटर्नली अच्छी लगती है. सो एक्नॉलेजमेंट makes you powerful. Acceptance gives you a startup. So accept the people and situations as they are. और friends क्या होता है, when we are very close to people around us or in family, और जब हमको जरूरतें होती है तो हम उनके बहुत क्लोज हो जाते हैं. जब हमारे काम हो जाते हैं तभी कितनी बार हम लोग अपने वर्ल्ड में वापस चले जाते हैं. अब जो अपनी दुनिया में चले जाते हैं ना वो आइसोलेशन है. प्लीज, वो फ्रीडम नहीं है. इट इज नॉट फ्रीडम, इट इज आइसोलेशन. ये खुलशो तो खिलशो बहुत बोलने को आसान है, बट मैं यहाँ जो भी बातें कर रहा हूँ वो बातें कन्विक्शन वाली बातें. वॉट एवर आई हैव लिव्ड आई एम शेयरिंग. मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ और जो करता हूँ वही बोलता हूँ. So when you are opening up
when you live life full of self-expression, you become the most powerful. तो क्या होता है, जब अकेले भी रहोगे ना, तभी भी आप सेल्फ एक्सप्रेसिव ही रहोगे. किसी का फोन आएगा ना, तो भी आप सेल्फ एक्सप्रेसिव रहोगे. कोई घर पे आ जाएगा तो भी आप सेल्फ एक्सप्रेसिव रहोगे. फ्रीडम से बात करोगे, कोई आपको खराब नहीं लगेगा. और आज के पेंडेमिक के टाइम में, कोविड के टाइम में, अगर सबसे पावरफुल इम्यूनिटी है तो बी सेल्फ एक्सप्रेसिव, बी हैप्पी. वो खुलशो तो खिलशो वही है. जितना मैं खुलूंगा, जितना मैं आपके साथ बात करूंगा, उतना आप मुझे सुनोगे और फिर आप बोलोगे. अब जब आप बोलोगे, मैं आपको बाहर से देख रहा हूं तो मेरे को तो आप शायद ढंग के भी नहीं लग रहे हो. जो मैं बोलता हूँ ना, हर इंसान सबको इवेल्युएट करता है, एनालाइज करता है. मैं जब आपको बाहर से देख रहा हूँ, एक्सटर्नली देख रहा हूँ, तो मेरे को आप नॉर्मल आदमी लग रहे हो और मैं आपको अंदर से एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा हूँ. बट मैंने अगर थोड़ी बात की, पर आपने भी जब थोड़ी बात मुझसे की, तब मुझे ख्याल आया कि आप तो क्या हो. लेकिन आप क्या हो कब मुझे दिखाई देगा, जब मैं आपको एक्सेप्ट करूंगा. And the moment you accept people, you start acknowledging internally. This is the most important thing. The moment you acknowledge, the moment you appreciate. Friends, यही दो चीज हमसे नहीं होती है. एक तो मैं किसी को एक्नॉलेज नहीं कर पाता हूँ, मैं हम नहीं बोलूंगा, बिकॉज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, वहां से ऑपरेट होना है. एक तो मैं किसी को एक्नॉलेज नहीं करूंगा, पर मुझे कोई एक्नॉलेज करेगा तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा. एक ह्यूमैनिटी का डिजाइन है, मतलब एक ह्यूमन है ना, यहां से जी रहा है. द मोमेंट यू एक्नॉलेज समबडी, अभी मान लो किसी को मैं बोलता हूँ, अरे यार बहुत प्यारा तुमने शर्ट पहना है, कितना मस्त शर्ट है. अब क्या होता है कि कोरोना के टाइम है ना, बहुत सारे लोगों की पुरानी चीजें भी निकली है, और पुरानी चीजें क्या, वो डिजाइनर वाली चीजें भी हुआ करती है, और बहुत अच्छी लगती है, यूनिक होती है ना. तो अचानक किसी को बोला, अरे बहुत प्यारी शर्ट पहनी, अरे जाने दो यार, ये तो 7-8 साल पहले ली थी. नॉर्मली इमीडिएटली थैंक यू भी नहीं निकलता है, इमीडिएटली सो काइंड ऑफ यू भी नहीं निकलता है. निकलता क्या है, कंसर्न. निकलता क्या है, इनवैलिडेशन. निकलता क्या है कि मेरी लाइफ कैसी है, मैं वहां से कुछ बाहर आता है. जस्ट गेट दिस फ्रेंड्स, लिविंग इन द प्रेजेंट इज ऑलवेज अ गिफ्ट. और यही गिफ्ट मैं आज आपको इस माध्यम से दे रहा हूं. और ये पोइट्री जो मैंने क्रिएट की है, और इधर एक मेरी और शायरी मैं आपसे शेयर करता हूं. हमारे पास कुछ अभी 6-7 मिनट है बिफोर वी कंक्लूड. और ये सबकी लाइफ है, ये भी बहुत गहराई की शायरी है. आई रियली गेट इंस्पायर्ड by sharing this poetry also, खुलशो तो खिलशो, and this शायरी also. हर इंसान जिंदगी में चाहता है ना कि अब बैलेंस लाइफ हो जाए, सिमट जाए और लाइफ बहुत स्मूथ चले, बहुत अच्छी चले. कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, तो गाना सुन लेने का. जितना मैं सिमटना चाहा, जितना मैं सिमटना चाहा, उतना बिखरता चला गया मैं. जितना मैं सिमटना चाहा, उतना बिखरता चला गया मैं. जितना मैं जिंदगी की गहराई में उतरा, उतना निखरता चला गया, उतना निखरता चला गया. इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, जितना मैं सिमटना चाहा, उतना बिखरता चला गया मैं. जितना मैं सिमटना चाहा, उतना बिखरता चला गया मैं. जितना मैं गंदगी की गहराई में उतरा. हम बोलते हैं ना कि यार ये ऐसा है, वो ऐसा है, दुनिया ऐसी है, लोग ऐसे हैं. प्लीज डोंट कंप्लेन. नो सेल्फ पिटी. उसमें आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारो और अपने आप को ही खत्म कर. जितना मैं सिमटना चाहा, उतना बिखरता चला गया मैं. जितना मैं गंदगी की गहराई में उतरा, उतना निखरता चला गया मैं, उतना निखरता चला गया. सो फ्रेंड्स, कमल भी कीचड़ में ही खिलेगा.
और अगर आपको भी खेलना है तो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं लेते लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते। कंट्रीब्यूट, लव अनकंडीशनली, लव अनकंडीशनली, दैट डेवलप्स ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेंस। और एक चीज मैं और शेयर करूंगा, ग्रेटिट्यूड की हम बात करते हैं तो बहुत सारी जगह पे, अभी फॉर एग्जांपल मैंने दिव्यांग को कुछ बोल दिया लेकिन मुझे एहसास हो गया कि यार मेरे को ये नहीं बोलना चाहिए था। दिव्यांग, मैं तुमको दिव्यांग बोल रहा हूँ, ठीक है? हाँ सर, तो प्लीज। हाँ, मैं सर्वर नहीं बोलूंगा, ठीक है? उसमें एक अपनापन चला जाता है और दिल से बात करो तो हमेशा दिल तक जाती है, मैं उसको भी मानता हूँ। मैं क्या शेयर कर रहा था? Something about attitude. Sorry, gratitude. हाँ, ग्रेटिट्यूड, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो मतलब सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं, नहीं तो एक जन तो सुन रहा है। तो ग्रेटिट्यूड में क्या है कि हम लोग है ना एक्नॉलेज नहीं करते, अप्रिशिएट नहीं करते। मैं एक्नॉलेज नहीं करता, तो कोई बात नहीं, मैंने दिव्यांग को कुछ बोल दिया और मुझे बाद में एहसास हुआ कि यार मुझे नहीं बोलना चाहिए, तो कोई बात नहीं। मेरा ईगो आता है, मेरी आइडेंटिटी आती है दिव्यांग को फोन करके अपनी गलती मानने के लिए, मीन्स मेरी मिस्टेक्स मानने के लिए, तो कोई बात नहीं। दिव्यांग को मन ही मन में आप सॉरी बोल दो, दिव्यांग को मन ही मन में आप ब्लेस कर दो। तो जब कभी भी आपको लाइफ में आसपास आपके लोग, अगर आपको लगता है ना इसने मेरे को हैरान किया, इसने मेरे को दुखी किया, उसको माफ कर दो। फॉरगिव एंड फॉरगेट, यू विल नेवर रिग्रेट। और किसी का आपने दिल दुखा दिया तो आप उसको सॉरी बोल दो। मुंह पे बोलोगे तो फुल सेल्फ एक्सप्रेशन है, पूरा खुल जाओगे, खिल जाओगे। अगर मुंह पे नहीं बोल सकते हो तो मन ही मन बोल दो, बार बार बोल दो, एंड यू विल सी टू इट दैट योर रिलेशंस ट्रांसफॉर्म, योर लाइफ ट्रांसफॉर्म्स, स्पेस अराउंड यू ट्रांसफॉर्म। जो ऑरा बोलते हैं ना, वो बहुत ट्रांसफॉर्मिंग हो जाता है। और आपको उस इंसान को मिलने के बाद, फर्स्ट टाइम मिलने के बाद या सेकंड टाइम मिलने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि उसको शायद जिंदगी भर से पहचान, जैसे मैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी यहाँ पे है, मैं जिंदगी भर मतलब बहुत टाइम से मैं उनको पहचानता हूँ। भले कुछ लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ तो उसको मैंने नाम ले लिया, लेकिन मैं जो लोग हैं यहाँ पे सबके साथ आई एम कनेक्टेड। यस फ्रेंड्स, तो इसी तरह दिलों में रहना, दुआओं में रखना। आई एम कंक्लूडिंग दिस सेशन, और ये सेशन कंक्लूड करते टाइम मैं एक मेरी फेवरेट शायरी भी बोल देता हूँ, और ये शायरी भी आपको बहुत अच्छी लगेगी, because it directly comes from heart. When things come from heart, it directly goes to heart. दुआओं की भीड़ में, ये सब आप लोगों के लिए, dedicated to all you, your family, and this entire session, and people, those who have, and I acknowledge you all, those who have made this session possible, and I acknowledge all those who are present here. And please, 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 I request you कि आप यही चीजों को आगे कंट्रीब्यूशन में डालना और लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करके ट्रांसफॉर्मेशन कॉज करना, सपोर्ट करना, उनको हेल्प करना। दुआओं की भीड़ में एक दुआ हमारी होगी। थैंक यू वेरी मच नीलम शाह, एक्सीलेंट सेशन, गॉट दैट। राजू भाई, आपको वाह वाह लिखने का एक और मौका दे दूंगा मैं। हाँ, मैं शायरी बोलूंगा आपके लिए। हाँ, अरे गॉट दैट, इसलिए मैं 2-3 मिनट जल्दी खत्म करूंगा। दुआओं की भीड़ में एक दुआ हमारी होगी, दुआओं की भीड़ में एक दुआ हमारी होगी, उसमें मांगी हमने हर खुशी तुम्हारी होगी, उसमें मांगी हमने हर खुशी तुम्हारी होगी, आपकी होगी। जब कभी भी मिले खुशियां आपको, जब कभी भी मिले खुशियां आपको, समझ लेना हर दुआ कबूल हमारी होगी, हर दुआ कबूल हमारी होगी, हर दुआ कबूल हमारी होगी। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दीपक भाई, आपके लिए शायरी। यस प्लीज। कुछ इस तरीके से जिंदगी को आसा कर दिया आपने, कुछ इस तरीके से जिंदगी को आसा कर दिया इस सेशन में आपने, सिखा दिया हमें कि कुछ लोगों को माफ कर लो और कुछ लोगों से माफी मांग लो। क्या बात, क्या बात, ग्रेट। वाह 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 वाह।
Yes, I am done. Thank you very much. Yeah, over to Divyang Bhai, for vote of thanks. Thank you, sir. Any other participants want to say something? Yes, please go ahead. Topic કે ખુલશો તો ખીલશો, એટલે we give open platform કે હજુ કોઈને કેવું હોય ખીલવાનો મોકો આપીએ. Can I say something, sir? Yes. Thank you very much, sir. It was really a nice session and also enriching one as far as our personal lives are concerned. બહુ મજા આવી, ઘણું બધું નવું જાણવા મળ્યું, શીખવા મળ્યું, અનુભવવા મળ્યું અને વિચારવાનો પણ મોકો મળ્યો. મારે 2-3 વાત નાની શેર કરવી છે. પહેલી વાત તો એ કે હું પોતે જાણું છું કે પ્રેક્ટિસ કરવી, અમલમાં મૂકવી ખરેખર અઘરી છે, પણ છતાં એ વાક્ય હું જ્યારે યાદ કરું છું તે હંમેશા મને ઇન્સ્પાયર કરે છે કે આપણે જ્યારે આજુબાજુના લોકો સાથે કામ કરીએ છીએ, એ આપણા સ્વજન, ઘરના લોકો, ફેમિલીના લોકો હોય કે પછી જોબ કરતા લોકો હોય, ફેક્ટ વસ્તુ એ છે કે આપણે જીવીએ ત્યાં સુધી એમની સાથે જ રહેવાનું છે અને છતાંય અમુક નાની બાબતો ધ્યાનમાં રાખીને આપણે પોતે દુઃખી થઈએ છીએ અને ક્યારેક બીજાને જાણે અજાણે દુઃખી કરીએ છીએ. અને જ્યારે આપણને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે કે તું જે તે વ્યક્તિ સાથે કેમ આવું વર્તન કરે છે, ત્યારે આપણે XYZ પાના હોય જ આપણી પાસે કે એને આવું કર્યું હતું, પણ કદાચ એનો જવાબ જે આ લાઈન છે એની અંદર છુપાયેલો છે. એ લાઈન આ પ્રમાણે છે કે એણે એ ભૂલ કરી. હવે એ ભૂલમાં તમે કંઈ પણ મૂકી શકો, કંઈ નાનું અપમાન કર્યું કે કંઈ પણ હોય, એણે એ ભૂલ કરી લીધી અને એ ભૂલને મેં યાદ કરીને મેં બહુ મોટી ભૂલ કરી લીધી. વાવ, સુપર. એણે એ ભૂલ કરી લીધી અને એ ભૂલને યાદ રાખીને મેં જીવનભર માટે બહુ મોટી ભૂલ કરી લીધી. કદાચ આ વસ્તુ આપણને હંમેશા બ્લોક કરતી હોય છે. શક્ય છે કે ગમે તેટલો મોટો ઝઘડો થયો હોય તો હંમેશા એ રિલેશનશિપ રિકવર થવાના અને વધારે પોઝિટિવ બનવાના, ઇવન પહેલા કરતા વધારે સારી બનવાના પણ ચાન્સીસ હોય છે. પણ ઘણીવાર આપણે એ જે બ્લોકેજ છે ને એના કારણે આપણે એને અલાઉ નથી કરતા હોતા. એટલે હું એવું નથી કે હું પોતે અમલમાં મૂકી શક્યો છું 100%, બટ આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ ડુ ઇટ વિથ મેની ઓફ માય પીપલ. બીજી વસ્તુ જે કદાચ આપણે બધાને ઉંમર સાથે કોઈ ઇરિસ્પેક્ટિવ ઓફ અવર એજ, આપણે કોઈ પણ પ્રોફેશનમાં હોઈએ કે કોઈ પણ ઉંમરના હોઈએ, આ એક્ઝામ્પલ મને લાગે છે કે આપણને બધાને કામ આવી શકે કે આપણે બાથરૂમમાં પાણીના નળની નીચે ડોલ રાખી દઈએ, પાણીનો નળ ફૂલ ફોર્સમાં ચાલુ કરી દઈએ, પણ ડોલની ઉપર કોઈ પાત્ર મૂકેલું હોય કે થાળી મૂકેલું હોય કે કોઈ પણ બ્લોકેજ મૂકેલું હોય, હવે એ નળને 24 કલાક કે 24 વર્ષ પણ ચાલુ રાખીએ તો પણ એ ડોલ ભરાવાની નથી, કેમ કે વચ્ચે પાત્ર છે. બસ આપણે માત્ર એ પાત્ર જ હટાવવાનું છે. જે વિદ્યાર્થીઓ હોય તો એમને પોતાની જે મેન્ટાલિટી છે કે આ મને નહીં આવડે, બસ એમને પાત્ર હટાવવાનું છે. આપણે એવું માનીએ કે આ મારાથી નહીં થાય કે મારા જીવનમાં તો થવાનું જ નથી, બસ માત્ર આપણે પાત્ર જ હટાવવાનું છે. તો કદાચ આપણે બધા, ભગવાને આપણને સરખા જ આશીર્વાદ આપેલા છે અને સરખું જ આપેલું છે અને ભગવાન બધા માટે છે. સો આઈ થિંક વી વિલ બી એબલ ટુ લીવ અ વેરી હેલ્ધી એન્ડ પોઝિટિવ મીનિંગફુલ લાઈફ. થેન્ક યુ ફોર ગિવિંગ મી ધીસ ચાન્સ. થેન્ક યુ. યસ ડોક્ટર ઉત્પલ, યુ આર પરફેક્ટલી રાઈટ. અને પેલું એ છે ને કે ઉપરવાળો ખાલી તથાસ્તુ જ બોલે છે, અને અહીં તમે બોલ્યા એમાં મને એક બીજી વસ્તુ યાદ આવી ગઈ સ્પિરિચ્યુઅલિટીના હિસાબે, કે કોસ્મિક એનર્જી જે છે ને એ ત્યારે જ કામ કરતી હોય આપણી લાઈફમાં જ્યારે આપણે વિચારવાનું બંધ કરીએ, વિચારોનું પતાવીએ, કારણ કે એક પરત થઈ જાય પેલી બાલ્ટીની ઉપરની જેમ. ગ્રેટ, વેરી ગુડ. સર જોરદાર. બીજા કોઈને બી કંઈ કેવું હોય તો હજુ. તમે બધા જોરદાર એટલે હું જોરદાર થઈ ગયો, बिकॉज यू आर माय मिरर. हर दूसरा इंसान आपका आईना है. अगर वो आपको पसंद नहीं है तो आप खुद को पसंद नहीं करते हो. Before somebody will make a formal vote of thanks, I personally, on my personal behalf, as well as from ISTD, as well as from the chairman of ISTD, Yagnesh Bhai also, personally thanks દીપક ભાઈ. આમ તો મારી બહુ એક ઈચ્છા હતી કે દીપક ભાઈને સાંભળવા છે, કારણ કે ટ્રેનિંગના આપણા જે બધા જેસીસના ટ્રેનિંગમાં આપણને એવું શીખવાડવામાં આવતું હતું કે સારો ટ્રેનર કોને કહેવાય, તો એક જેનામાં ઠહેરાવ હોય. અને ઠહેરાવ હોય એટલે એ બધી નાની નાની વાતોને પણ એકદમ અલગ બનાવી દેતા હોય છે. દાખલા તરીકે જ્યારે તમે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે આપણે સામેવાળા વ્યક્તિને મળીએ તો આપણે શું વિચારીએ એમ, તો એ આમ વાત બહુ નાની છે, એમાં કઈ બહુ મોટી વાત નથી, પણ એ ટ્રેનર ઠહેરાવ સાથે એને રજૂ કરે અને જે વ્યક્તિમાં છુપાયેલું હોય એને બહાર કાઢવાની જે કળા હોય છે, એ આપ જેવા ટ્રેનર પાસેથી આ બધા જે, કારણ કે આ દીપકભાઈ અમારું ઇન્ડિયન સોસાયટી ફોર ટ્રેનિંગ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ફક્ત ટ્રેનિંગ ઉપર જ ફોકસ કરે છે અને આપણે ત્યાં 80 લાઈફ મેમ્બર્સ છે અને ઘણા બધા નવા બડી ટ્રેનર્સ પણ છે.
અમે ટ્રેન ધ ટ્રેનર પ્રોગ્રામ પણ આવતા મહિને કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો આપ જેવા ટ્રેનર જો રોલ મોડેલ ને સાંભળે તો એને ખ્યાલ આવે કે ટ્રેનિંગ વસ્તુ શું છે અને એ સામેવાળામાં પરિવર્તન લાવવા માટે નથી હોતી, એ સૌપ્રથમ આપણે જાતમાં પરિવર્તન લાવવા માટેનું એક માધ્યમ હોય છે. તો ખરેખર આપનું સેશન ખૂબ સરસ રહ્યું, દિલથી નીકળ્યું અને દિલ સુધી અવશ્ય પહોંચ્યું અને આઈ પર્સનલી રિયલી એન્જોય. તમે તમારા અત્યંત કિંમતી સમય અમને આપ્યો અને મેં પણ લોકોને ગેરંટી આપી હતી કે દીપકભાઈને સાંભળશો એટલે તમને એમ લાગશે સાંભળ્યા જ કરીએ. એટલે ખાસ મજા આવી. ઓવર ટુ અવર જોઈન્ટ સેક્રેટરી દિવ્યાંગભાઈ. Got your love, Raju bhai. Got your love and affinity. Thank you very much. Love you. Thank you, Raju sir. So we will be closing session for today. From the ISTD team Anand chapter, we formally thank you, Deepak Sharma sir, for the wonderful session. અને તમારી પ્રેરણાથી અને જેમ રાજુ સરે કીધું કે ટ્રેનર પાસેથી જોઈને અને વી હોપ સો કે અમે તો અત્યારે ઘણા બધા થોડા મિત્રો છે જ અત્યારે, પણ પાછળથી બી જે લોકો આ વિડીયો યુટ્યુબ ચેનલ માધ્યમથી જોવે, કારણ કે આપણે આ બધા વિડીયો આઈએસટીડી યુટ્યુબ ચેનલ પર મૂકતા હોય છે અને બધા જ પોતે પોતાના ફિલ્ડમાં ખુલે અને ખીલે, એનાથી બધા સમાજને મદદ કરે અને એનાથી ફાયદો તો અંતે પોતાનો જ છે. કે તમે શરૂઆતમાં જ કીધું કે મદદ કરીશું તો પાછું આપણને ભગવાન આપશે જ અને મળતું હોય છે. અને અમે આશા રાખીએ કે દરેક શુક્રવારે ફ્રાઈડે ફોરમ આપણે આઈએસટી આણંદ ચેપ્ટરમાં કરતા હોય છે. એનીવન કેન જોઈન અસ. આમાં કોઈ આપણે ચાર્જિસ નથી રાખતા અને ઝૂમની લિંક પણ સેમ જ છે, જેનો મીટિંગ આઈડી છે 7181519916, પાસવર્ડ 123456. તમે તમારા મિત્રને, ફ્રેન્ડ્સને અથવા કલીગ્સને, પરિવારમાં કોઈને પણ આ લિંક મોકલી શકો છો જોઈન થવા માટે. અને દીપક સર જેવા અનુભવી સ્પીકર્સને જ આપણે બધાને કહેતા હોય છે અને એમની પાસે સાંભળી અને શીખીએ અને સમાજને આપણે મદદ કરીએ, એ જ આશયથી આઈએસટીડી ફ્રાઈડે ફોરમ અમે ચલાવીએ છીએ. અને આ એક 2 વર્ષથી અમે સતત ચલાવીએ છીએ, જેની નોંધ આઈએસટીડી નેશનલ લેવલ પર બી લેવામાં આવી છે. અને હજુ પણ આવું કરતા રહીશું અને તમારા બધાનો સાથ સહકાર હશે, નવા નવા ટોપિક કરીશું. અને દીપક સર, થેન્ક યુ વેરી મચ ફ્રોમ ધી આઈએસટીડી આણંદ ચેપ્ટર ટીમ અને બધા પાર્ટિસિપન્ટ જે લોકો આજે જોઈન થયા અને હજુ ભવિષ્યમાં પણ કોઈ બધા જે લોકો યુટ્યુબ ચેનલથી જોશે. થેન્ક યુ સર.